Good morning, class 9th. Welcome to Path online classes. Students, today we are going to discuss what is a presentation software and how to create a presentation using these softwares. So first of all, we will discuss what is a presentation. बच्चे, a presentation is a collection of slides arranged in a sequential manner to convey, pursue, motivate, entertain, or to provide information about a particular topic. If you want to convey your message or you want to provide some information on a topic, then you can do with the help of a presentation. अब presentation को आप क्या करते हो? The presentation can be projected on a big screen by attaching the computer with a multimedia projector. Multimedia क्या होता है बेटा? Multimedia which that uses various devices. Okay, multimedia devices means you can see images, text, video, audio भी सुन सकते हो, video भी देख सकते हो, तो that is your multimedia devices. Okay, so presentation is basically used to convey some information, or if you want to show your information, then you can use a presentation. Okay, अब presentation को बनाने के लिए we use presentation softwares. So as you all know, softwares that is a set of programs that are used to perform some specific task. अब आपके पास सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं बेटा. वन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज यस बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ओके, सो जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. ओके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to create presentations in the form of slide show. ठीक है. Now the next is which presentation softwares we can use to create presentations. We can use various application softwares जो आपके पास available हैं, जो आप use कर सकते हो to create a presentation. ठीक है. If you want to use yes open offices, ठीक है, तो आप you can use LibreOffice Impress, its name as Impress. बच्चे हम जनरली यूज करते हैं Microsoft PowerPoint. ये टर्म तो आपने सुनी होगी. Okay, that is a product of Microsoft. In this, the presentation software is named as PowerPoint. Similarly, अगर आप LibreOffice यूज कर रहे हैं, Microsoft Office यूज नहीं कर रहे, if you are using LibreOffice which is free to download and you can use it, and its presentation software is named as Impress. Next is you can also use another open source or freely available software that is OpenOffice, and presentation software का नाम है इसका Impress. OpenOffice Impress. Next you can also use a G Suite app. ठीक है, आप एक G Suite की भी ऐप यूज कर सकते हैं दैट इज प्रोवाइडेड बाय गूगल एंड इट्स नेम एज गूगल स्लाइड्स. अनदर वन इज यू कैन ऑल्सो यूज द प्रोडक्ट ऑफ एडोब दैट इज एडोब कनेक्ट. ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस. तो यू कैन यूज any one of the software to create the presentations. Now next is up whenever you create a presentation, when you are going to convey your message or information, which things or which elements you can use in a presentation. You can use regular text, means आप text यूज कर सकते हैं. You can use list items, means आप bullets, unbulleted list और bulleted list. ओके, मीन्स ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज बैकग्राउंड्स एंड टाइटल्स. यू कैन यूज ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक क्लिप आर्ट, शेप, डायग्राम्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स. You can insert audio and video in a presentation. You can also apply transitions and animations in a presentation. We will discuss in detail what is the
द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड एनिमेशन. ओके, ट्रांजिशंस होती हैं आपके पास कि स्लाइड्स कैसे एक के बाद, बिकॉज योर प्रेजेंटेशन इज कंसिस्ट ऑफ स्लाइड्स. ओके, तो वो स्लाइड आपके पास कैसे अपीयर होंगी, दैट इज योर, हाँ जी, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन. Okay, next is you can also apply header and footer. You can apply date and time in presentation. Even you can insert slide numbers in a presentation. So you can add all these items within a presentation. Now the next is, what are the characteristics of a good presentation. ठीक है, एक गुड प्रेजेंटेशन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बच्चे. द वेरी फर्स्ट वन इज इट शुड बी वेल डिजाइन्ड. ठीक है, आपको पता है द प्रेजेंटेशन दैट इज अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट द आइडियाज एंड व्यूज इफेक्टिवली थ्रू विजुअल एड्स. मतलब आप अपने आइडिया और व्यूज को प्रेजेंट कर सकते हो, विजुअली प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू क्रिएट अ गुड प्रेजेंटेशन. पहली गाइडलाइन क्या है, इट शुड बी वेल डिजाइन्ड. बच्चे, जो आपके पास प्रेजेंटेशन होती है ना, दैट शुड बी केयरफुली फ्रेम्ड. ठीक है, बस एंड कीप इन दिस माइंड अबाउट द ऑडियंस एंड सिचुएशन एंड द सब्जेक्ट. आप किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपकी ऑडियंस क्या है. Okay, you have to keep that in mind. Make sure कि जो slides हैं that should not be too complicated. वो easy होनी चाहिए to understand, so that audience will not lose concentration. ठीक है, so it should be well designed. Next characteristic is number of lines. बच्चे, कभी भी slides के ऊपर बहुत ज़्यादा lines नहीं लिखनी चाहिए. Text should be less. Maximum 5 to 8 lines within a slide. Next is use of color. Beta, make sure that your presentation is attractive and appealing. तो आपको कलरफुल, ज़्यादा लाइट कलर को अवॉइड करना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो आपकी बैकग्राउंड है, ओके, वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए. Is it clear? So but you can use dark color, bold letters and different fonts to highlight the points को हाईलाइट करने के लिए. देखो, मैंने भी ये प्रेजेंटेशन ही आपके पास, मैंने जो हेडिंग है वो मैं रेड कलर में हाईलाइट की हुई. ओके, और यहाँ पर मैंने एक अनबुलेटेड लिस्ट भी डिफाइन की हुई है. अनबुलेटेड, जिसके आगे बुलेट्स लगे हुए हैं. सॉरी, बुलेटेड लिस्ट. ओके, अनबुलेटेड होती है जिसमें आप नंबर्स यूज करते हो, दैट इज नोन एज योर नंबर लिस्ट. This is your bulleted list. Now next is format for perfection. बच्चे, formatting, जो भी टेक्स्ट है that should be properly formatting. और formatting हमने अच्छे से डिस्कस की हुई है. Formatting which change the appearance of your text. तो आपका टेक्स्ट प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, ओके, एंड प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. नेक्स्ट इज यूज हाई क्वालिटी ग्राफिक्स. जब भी आप कोई पिक्चर्स या ग्राफिक्स यूज करोगे तो दैट शुड बी ऑफ high quality. Even you can use animations and videos in your presentation. Okay, because जब आप transitions, animations और videos करोगे ना, तो that serve as a change of pace and that's why they increase the interest of audience. Okay, वो interest increase कर देती है. और बहुत ज़्यादा animations और videos एक ही slide के ऊपर apply नहीं करने चाहिए और एक्सेसिव कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिशंस भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज. नो स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन द कंटेंट. एंड नेक्स्ट इज कीप योर प्रेजेंटेशन सिंपल. जितने सिंपल रख सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें. कीप इट सिंपल. नेक्स्ट इज मिनिमाइज द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द स्लाइड्स. बच्चे, यू शुड अवॉइड टू इंक्लूड टू मैनी फिगर्स एंड नंबर्स. तो बेटर है कि आप जितने भी नंबर्स हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, लाइक चार्ट्स. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स.
Now, after discussing the characteristics of a presentation, of a good presentation, let us discuss the various components of a application software that is used to create PowerPoint presentation. Okay, students, as I have already told you that we are using Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint used to create presentation. So now we will discuss what are the various components of that window. ठीक है बच्चे, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ओके, एंड देन दिस एप्लीकेशन विंडो और यू विल गेट ओपन. सो हम साथ साथ एक प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम ये कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे. फॉर दिस let us start creating a presentation and we will discuss what are the various components of this presentation. Okay, for this we have to minimize the presentation. Okay, and how to create a presentation? For this, either you have to click on the start button and search for, या तो आपको यहीं पर दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर, और यू हैव टू टाइप माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint 2007. क्लिक हियर, अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विल गेट ओपन. ठीक है, या फिर आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके भी न्यू पे क्लिक करके क्लिक ऑन न्यू बटन और एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint presentation. A new presentation will get open. हाँ जी, एक नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी एंड बाय डिफॉल्ट इट्स नेम इज प्रेजेंटेशन 1. इसका डिफॉल्ट नेम होगा प्रेजेंटेशन 1. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस, हाँ जी, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस विंडो. ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स डिस्कस करने. नाउ द वेरी फर्स्ट वन कंपोनेंट इज योर टाइटल बार. सबसे ऊपर आपके पास आता है बच्चे ये टाइटल बार विच शोज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन. ठीक है, प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट इट्स नेम इज प्रेजेंटेशन 1. हाँ जी, एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, अपर कॉर्नर, देयर इज एन ऑफिस बटन. आपका जो 2010 है ऑफिस बटन रिप्लेस करता है विद द फाइल मेन्यू. वहां पर फाइल मेन्यू आता है, फाइल टैब आती है रादर देन दिस ऑफिस बटन इफ यू आर यूजिंग ऑफिस 10. ठीक है, ऑफिस बटन है. आफ्टर दैट देयर इज अ टाइटल बार. नाउ दिस इज योर दिस इज योर रिबन. दिस कंप्लीट एरिया इज नोन एज रिबन इज कंसिस्ट ऑफ टैब्स आर फर्दर डिवाइडेड. हाँ जी, टैब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और ग्रुप्स आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस कमांड्स. ठीक है, जैसे आपके पास होम टैब है, होम टैब में मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग की कमांड्स होती हैं. ओके, इंसर्ट में आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक्स, हाइपरलिंक क्रिएट करना है. इफ यू वांट टू ऐड सम टेक्स्ट बॉक्स यू कैन गो टू द टेक्स्ट ग्रुप, एंड इफ यू वांट टू ऐड साउंड एंड म्यूजिक और ऑडियो then you can go to the media clips. So this complete is known as ribbon. Okay, after that इसके बाद जो न्यू चीज होती है, हाँ जी, एक आपके पास टाइटल बार हो गया, रिबन डिस्कस कर लिया हमने. नेक्स्ट इज क्विक असेस टूल बार. बच्चे दिस क्विक असेस टूल बार, ऊपर कुछ कमांड्स होती हैं विच आर क्विकली असेस, जिनको हम क्विकली असेस करते हैं, दैट आर प्लेस्ड इन द क्विक असेस टूल बार. ये हमने MS वर्ड में भी डिस्कस किया था कि वी कैन कस्टमाइज इट. हम इसमें से यहाँ स्मॉल एरो पर क्लिक करके हम कुछ कमांड्स को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट द न्यू थिंग इज, हाँ जी, न्यू थिंग इसमें होती है ये कि जो आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक पार्ट को हम बोलते हैं, नेक्स्ट इज स्लाइड पेन. ठीक है, जो आपके पास दिस लेफ्ट हैंड पोर्शन है, पार्ट है, दैट इज नोन एज स्लाइड पेज. एंड in slide pane there are 2 tabs. One is your slides tab and second is outline tab.
आप जो भी स्लाइड टैब्स में, अगर आप स्लाइड टैब्स पर क्लिक करोगे, जितनी भी स्लाइड्स आप इस प्रेजेंटेशन में ऐड करते हो, इट विल शो यू द स्लाइड्स। एंड इफ यू क्लिक ऑन द आउटलाइन, जो भी स्लाइड के ऊपर कंटेंट्स हैं उनके सिर्फ आउटलाइनिंग दिखा देगा आपको, मेन हेडिंग्स दिखाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ जी, स्लाइड टैब हो गया, आउटलाइन टैब हो गया। नेक्स्ट इज योर एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक्चुअली शोज यू द, हाँ जी, एक्चुअली शोज यू दैट स्लाइड। जो भी स्लाइड आप यहाँ से स्लाइड पेन से सेलेक्ट करेंगे, इफ यू वांट टू फॉर्मेट इट और एडिट करना है आपको, तो आपको, हाँ जी, यहीं पर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज नोन एज योर नोट्स पेन। ओके, हियर यू कैन ऐड notes related to this particular slide if you want to add some notes for the audience। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर कुछ कंटेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एंड आफ्टर व्हेन यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन आप ये नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑडियंस को, तो यू कैन टाइप द नोट्स इन द नोट्स पेन। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट, हाँ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज योर स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके पास दो चीजें होती हैं। हाँ जी, द वेरी फर्स्ट वन इज योर स्लाइड्स व्यू एंड नेक्स्ट इज योर जूम स्लाइडर। ओके, नाउ व्हाट आर स्लाइड्स व्यू? बच्चे यहाँ पर स्लाइड व्यू दिखा रहा है, बेसिकली किसी भी स्लाइड्स। अब स्लाइड्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रेजेंटेशन इज लाइक अ बुक, ओके, दैट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्लाइड्स। जैसे आपकी बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, सिमिलरली ईच page in a presentation is known as slide, or you can say a digital page in a presentation is known as slide। is it clear? now अब आपके पास कौन कौन से व्यूज होते हैं बेटा? ठीक है, we will discuss these views later। ठीक है, अभी आपको 3 ही व्यूज बता रही हूँ। if you want, this is your normal view, दिस इज नॉर्मल व्यू वेयर यू कैन एडिट एंड फॉर्मेट योर स्लाइड्स। ये नॉर्मल व्यू होता है जो आपके पास इस टाइम खुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्लाइड सॉर्टर। आप इफ यू वांट कि आप थंबनेल्स देखना चाहते हो हर एक स्लाइड के, जितनी भी स्लाइड्स आपने ऐड की हैं, तो यू कैन गो टू द स्लाइड सॉर्टर। ओके, आई विल शो यू लेटर कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्लाइड सॉर्टर व्यू। एंड नेक्स्ट इज योर स्लाइड शो। I think so all of you are aware about slideshow। ठीक है, if you want to run your presentation or if when you want to show your presentation, you always use this slideshow। and next is your zoom slider। अगर आपको zoom out करना है, zoom in करना है, ठीक है, minimize करना है, maximize करना है, तो you can use zoom sliders। and next is your horizontal and vertical scroll bar। so all these are the, and all these are the components of a PowerPoint window। okay, application window। I think so it's clear what are the various components of a PowerPoint window। now the next topic is related to what are the various ways to create a presentation। बच्चे, if you want to create a new presentation, then there are 2 methods to create a new presentation। You can either use a blank presentation to create a new presentation, or you can use built-in templates। बने बनाए structures होते हैं with the help of which you can create your presentation। so ये किस तरह से create करेंगे? yes, for this we have to come out of this, okay, and minimize it। and now हमने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ था, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की थी, ओपन की थी, दैट इज प्रेजेंटेशन 1। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। फॉर दिस क्लिक ऑन दिस ऑफिस बटन, क्लिक ऑन न्यू। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं बेटा, 2 ऑप्शंस आती हैं, आइदर यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, या तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक होता है बिल्कुल खाली होती है जो प्रेजेंटेशन, वेयर यू हैव टू ऐड द कंटेंट्स व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। ओके, कुछ इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स होते हैं, क्लिक ऑन सेकेंड ऑप्शन, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। बच्चे, ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज दीज टेम्पलेट्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली द इनिशियल फाउंडेशंस टू बिल्ड अ प्रेजेंटेशन विच कंटेन्स वेरियस थीम्स, थीम कलर, इफेक्ट, बैकग्राउंड स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, इसमें लेआउट्स भी दिए हुए हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज
select any of these templates and you can start creating that presentation by making the changes in it. आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो बच्चे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सपोज दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड. हाँ जी, नेक्स्ट इज दैट यू कैन चेंज द स्लाइड लेआउट. बच्चे ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. फर्स्ट स्लाइड, अगर आप सपोज स्लाइड के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड लेआउट बेसिकली डिफाइन करता है बेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्लाइड. अब सपोज जो स्लाइड ऑलरेडी हमारे पास ओपन है दैट इज टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड. ठीक है, ये टाइटल स्लाइड है कि आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हो और नीचे एक सब टाइटल दे सकते हो. जो फर्स्ट स्लाइड बाय डिफॉल्ट ओपन होती है दैट इज योर टाइटल स्लाइड ओपन होती है. ठीक है, इफ यू वांट टू position your text, image and other graphics element in an another way, तो you can change the slide layout. हाँ जी, slide layout के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, for this you have to click on the, हाँ जी, you have to click on the home tab. हाँ जी, and from home tab second group is your slides group and from layout option you can change the, yes you can change the लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ योर स्लाइड. बच्चे आपको कैसी स्लाइड चाहिए, आपको टाइटल स्लाइड चाहिए, आपको टाइटल भी लिखना है, कंटेंट भी लिखने हैं, तो चूज टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड. यू कैन, इफ यू वांट टू कंपेयर टू थिंग्स देन यू कैन यूज टू कंटेंट्स कंपैरिजन स्लाइड्स. ठीक है, कंपैरिजन लेआउट यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू ऐड सम कंटेंट विद कैप्शन प्लस पिक्चर भी ऐड करनी है तो यू कैन यूज पिक्चर विद कैप्शन ऑप्शन. तो एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक, आपको बिल्कुल खाली स्लाइड चाहिए तो यू कैन चूज ब्लैंक लेआउट. ओके, आई थिंक सो इट्स क्लियर हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन. ओके, एंड हाउ टू चेंज द स्लाइड्स लेआउट. ओके, आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सेव इट. ठीक है, इसके लिए मैं ऑलरेडी जो बनी बनाई स्लाइड्स है उसी को ओपन कर लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी जो जहां से हम कर रहे थे, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रेजेंटेशन. ओके, मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली, दैट इज नेम एज क्लास 9 प्रेजेंटेशन 1. बच्चे दिस इज योर स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स हैं इसमें. वी कैन ऑल्सो सेव दीज स्लाइड्स एज अ पीडीएफ. देखो बच्चे, बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है आपकी प्रेजेंटेशन की दैट इज .pptx. ठीक है, फाइल नेम .pptx. यू कैन ऑल्सो सेव इट एज पीडीएफ. उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एज एंड सेव एज ऑप्शन में फर्दर यू हैव टू चूज पीडीएफ और एक्सपीएस. ठीक है, देन गिव द नेम. ठीक है, नेम दोगे एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश. जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करोगे योर दिस प्रेजेंटेशन विल गेट सेव्ड एज, हाँ जी, आपकी ये प्रेजेंटेशन एज अ पीडीएफ सेव हो जाएगी. क्यों हम पीडीएफ सेव करते हैं बेटा, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फाइल so that nobody can change it. ठीक है, कोई इसमें चेंज ना कर सके. ठीक है, आप सिर्फ एडिटिंग नहीं करवाना चाहते अपनी स्लाइड्स में, तो मेक योर स्लाइड्स एज अ सेव योर स्लाइड्स एज अ पीडीएफ. आई थिंक सो इट्स क्लियर. नाउ क्लोज दिस पीडीएफ. The next option is very important option. बच्चे, sometime you want to protect your file so that others cannot view it. ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ इसमें एंड यू वांट टू मेक इट पासवर्ड प्रोटेक्टेड. ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हो. सो फॉर दिस क्लिक ऑन दिस ऑफिस बटन, सेव एज पर क्लिक करोगे. ओके, जैसे ही सेव एज पर क्लिक करोगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन. फ्रॉम हियर नेम चूज कर लीजिए फाइल का. ओके, एंड देन गो टू दिस टूल्स ऑप्शंस एंड गो टू जर्नल ऑप्शंस. एंड हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स बेटा जो आप लगा सकते हो, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई. आप किस फाइल की ओपनिंग पर पासवर्ड लगाना चाहते हो और यू वांट कि कोई और पर्सन आपकी फाइल को ओपन तो कर ले बट मॉडिफाई ना कर सके, मीन्स उसमें कंटेंट चेंज ना कर सके, तो यू कैन यूज पासवर्ड टू
modify. ठीक है, if you want to apply password to open, then you can give both password to open or password to modify. I want to apply the password while opening the presentation. तो मैं password to open, मैंने password लगा दिया. Okay, and then click on OK. Re-enter password, 2 बार टाइप करना पड़ेगा, and then click on OK. Okay, and save this file. Okay, clear? Now I am going to open again. मैंने इसको क्लोज कर दिया अपनी फाइल को. Now I want to open my file. Okay, now my file is in this folder. Okay, my file name is class 9 presentation 1. जैसे ही आप उसे ओपन करोगे it will ask for the password. ठीक है, हमने पासवर्ड लगाया, ओके पे क्लिक किया. नाउ योर फाइल इज नाउ पासवर्ड प्रोटेक्टेड. आई थिंक सो इतना क्लियर हो गया आपको. हाँ जी, अब हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर ली है. नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन. यू नो हाउ टू run your presentation as a slideshow? Yes, for this click on view button. I have already told you that we are working in the normal view. ठीक है, यहाँ से you can press slideshow और you can simply press, देखो एक टूल टिप आ रही है, आप simply F5 प्रेस करेंगे तो your presentation will get started. Okay, and if you want to come out of this slideshow, simply press escape button. Okay, जैसे ही escape करेंगे then you can come out of the slideshow. Okay, you can also open any presentation by clicking on the office button and then click on open, and you can browse your file, whatever file you want to open. And if you want to close it, you simply click on this button, and in this way you can close your presentation. I think so it's clear. हाँ जी, slideshow चलाना है. In this way you have to press the arrow keys to move to the further slide, next slide. I think so इतना clear हो गया आपको how to create a presentation, what are the different ways to create a presentation, and what are the components of the presentation, and how to open a presentation, and how to run a presentation as a slideshow. So students, thank you and have a nice day.